Good evening, friends. Thank you for joining me every evening to follow what's happening in India and abroad. Thank you for sending me your useful comments and suggestions. If you believe in this channel, do share it with your friends and spread the message. Our only mission is to bring you the truth and both sides of the story. Thank you for your support. We have Kajal Hindustani with us today, who is best described as an entrepreneur, a research analyst, a debater, a social activist, a pro-Indian right-winger, and a nationalist. Welcome, Kajal. Thank you, Meena ji. And viewers have heard her speak, and she's a person who does not hold herself back. And that's the most interesting aspect of Kajal's character. Thank you, Kajal, for joining us. Thank you, Meena ji. Yeah. So what I wanted to, we'll open with what's happening in Bollywood, Kajal. See, boycott Bollywood has sort of affected Bollywood in such a manner that the film stars and their patrons seem to be looking for alternative pastimes, like holidays in exotic locales like Maldives and flashing pictures in bikinis, or getting married and flashing photographs of everything from who is on the guest list to mehndi, dances, and the gifts that land at their door. Now, what I wanted you to listen to is that it's very interesting that these weddings also entail very expensive gifts. So I'll just give you an example of what Katrina Kaif and Ankita Lokande received from different people. Now she got a diamond ring worth rupees 1.3 crores from Vicky, okay, and with a 15 crore apartment. Now Salman Khan gave her a Range Rover, which was worth 3 crores. And Alia Bhatt gave her she was a little bit stingy, so she gave a perfume basket. Ranbir Kapoor gave a gift of a diamond necklace worth 2.7 crores. Then there was another gift from Shah Rukh Khan, a painting which was worth 1.5 lakhs. And then you also have somebody, I think it was Hrithik Roshan, who gave a BMW G310R, which is a mobike, worth 3 lakhs. And then Tapsi Pannu gave her a platinum bracelet, which was worth 1.4 lakhs. And now if you look at the Ankita Lokande, she received a diamonds worth 50 lakhs from Ekta Kapoor. And Mahi, which gave the newly wedded bride a sari from Sabyasachi's collection, which costs around 15 lakhs. While Rashmi Desai, who is in Big Boss, gifted her a sari from Neeta Lulla, which is worth 10 lakhs. Meanwhile, Vicky Jain got a fancy watch and a diamond choker for the bride worth 15 lakhs. And Ankita's Pavitra Rishta co-star, Shahir Sheikh, presented her with gold jewelry worth 25 lakhs. And then there's actress Mrinalini Tyagi, who gave a gold jewelry worth 10 lakhs. And a telestar, Shrishti Rode, presented a gold chain that costs 5 lakhs. And last and least, Tiger gave her a 40 lakh Mini Cooper, and Shraddha gave her a diamond bracelet worth 8 lakhs. Now, another wedding is also happening at the same time. It's Moni Roy's also wedding. She's a TV actress as well. So I find this very strange, Kajal, that why these sort of gifts? I mean, if you look at Ranbir Kapoor, he was actually an ex-boyfriend. Okay, so what's the kind of affection that he has for Katrina Kaif? Okay, and why would someone like Hrithik Roshan give her a gift, or Salman Khan give a car? So these things have puzzled me. Has it ever come across your mind? What is the reason for this? मीना जी, जो भी आपने डिटेल दी, आई एम वेरी श्योर आपने बहुत ही उम्दा रिसर्च किया है, क्योंकि आपने एक एक प्राइस को कोट किया है, but what I find itself ki, because I am also belong to stock market, right? My businesses, and I usually know about these people, क्योंकि इनका क्या है ना कि शेल कंपनीज की हमारी बात हुई थी, और होता क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक ऐसा मतलब है ना बकरा ढूंढते हैं जो कि एक नोन फेस होता है, और उसके सामने शादी करवाते एक अननोन फेस के बंदे के साथ में। अब जैसे कि अगर हम राज कुंद्रा का देखें, तो राज कुंद्रा के पास तो कुछ भी नहीं था,
वो दुबई गया और उसके इतने सारे बिजनेसेस हुए, कहाँ से हुए वो भी नहीं समझ में आया। फिर उसने बुर्ज खलीफा पे उसको प्रपोज किया शिल्पा शेट्टी को, और वो रहता दुबई था। फिर शिल्पा शेट्टी के साथ शादी करके वो भारत आता है, और भारत में भी वो हमेशा छाया रहता है पेज 3 पर। और महंगे महंगे गिफ्ट से ही स्टार्ट हुआ था, और बहुत मीडिया में चर्चा का विषय बना था, क्योंकि इतने महंगे गिफ्ट उसने उसको शिल्पा को दिए थे, और बुर्ज खलीफा पर उसको फ्लैट लेके देकर उसको जो प्रपोज किया। हाँ। तो राज कुंद्रा का जैसे ही सब कुछ सामने आया कि वो क्या क्या कांड कर रहा था, यहाँ पे एक चीज और जानने जैसी है कि ये डार्क वेब के साथ कनेक्टेड है सब लोग। हाँ, बिल्कुल। अगर हम शेल कंपनीज की बात करते हैं, या हम जो फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, तो ये सब चीजें बहुत छोटा हिस्सा है। अगर आप देखेंगे कि ये जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, इनको इनसे पड़ी नहीं है फिल्मों से। हाँ। वो इसलिए क्योंकि रिसेंटली कुछ दिन पहले करीना कपूर ने एक बरखा दत्त को इंटरव्यू दिया था और कहा था कि मत देखो ना हमारी फिल्म, हाँ। हम थोड़ी कहते हैं कि हमारी फिल्म देखो। वो एब्सोल्युटली। जो कॉन्फिडेंस था ना, वो मुझे स्ट्राइक हुआ। तो मैंने जितना रिसर्च किया, मुझे ये समझ में आया कि इनको फिक्स पैसा मिलता है हर महीने, ये पेड पेरोल सैलरी पे है ये सब लोग, लेकिन इनको एक प्रोपोगेंडा भी साथ में दिया हुआ होता है। अगर ये फिल्मों में 1 करोड़ से 5 करोड़ की अपनी फीस ले रहे हैं, वो तो बहुत छोटा हिस्सा है, उनको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पर उसके पीछे जो उनको टारगेट दिया रहता है कि एंटी हिंदू कैंपेन करो, एंटी मोदी करो, एंटी इंडिया करो, और जैसा कि कथुआ का हुआ था, तो ये सारे एक्टर एक्ट्रेस प्ले कार्ड लेकर आ गए थे, आई एम अशेम्ड, आई एम हिंदुस्तानी, और पर्टिकुलर वो वर्ड इन्होंने हिंदुस्तानी यूज किया था। इसके पीछे का कारण ये है कि हिंदुस्तानी में हिंदू बसता है, और हिंदू की नेशनल और इंटरनेशनल छवि जो है इन्हें खराब करनी होती है। और क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग जो होती है वो नेशनल और इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग होती है, तब भी तो आप देखो कि क्यों मियां खलीफा भारत के किसान आंदोलन के लिए ट्वीट करती है, या रेहाना ट्वीट करती है, या ग्रेटा थनबर्ग जो एक एनवायरमेंटलिस्ट है, उसको किसान आंदोलन से क्या लेना देना है। एनवायरमेंट पे करे तो समझ में आता है, ठीक है। तो एज एन होल अगर मैं ये सारी चीजें देखती हूँ, तो ये पूरा एक नेक्सस है, और इनका एक पूरा इकोसिस्टम है जो आपस में बहुत कनेक्टेड है। और मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इसका छोटा हिस्सा मैं इसलिए कहूंगी, क्योंकि बाहर से पैसा जब यहाँ भेजते हैं, या यहाँ का पैसा जब बाहर जाता है, तो शेल कंपनीज के थ्रू ही ये लोग दिखा पाते हैं, या एनजीओ के थ्रू ये दिखा पाते हैं। अब एनजीओ पे तो क्या हो गया कि मोदी जी ने आके क्रैकडाउन कर लिया पूरा इनको, और अभी कुछ दिन पहले भी कुछ 1500-1600 एनजीओ इन्होंने जो है गवर्नमेंट ने बंद करे। तो अब दूसरा रास्ता क्या रहता है, शेल कंपनीज। तो शेल कंपनीज को भी कब नुकसान हुआ, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो उससे बहुत सी शेल कंपनीज ऐसी है जो बंद हो गई। और एक सेबी की स्ट्रिक्ट वॉच रहती है, एक सेबी की गाइडलाइंस इतनी स्ट्रिक्ट बन गई मोदी जी के आने के बाद, कि इस तरह से शेल कंपनीज बनाना, पेपर पे दिखाते हैं बेसिकली, ये होती नहीं है वो कंपनी, और फिर उसको लिस्ट करते हैं, और मार्केट में वो पैसा जो है वो घूमता है, और ब्लैक को व्हाइट करने का इस तरह से पूरा बिजनेस चलता है इनका। लेकिन बाहर से जो फंड आता है, उस फंड को ये लोग यूज ही इसलिए करते हैं, इन लोगों को हथियार बनाते हैं। अब बहुत सी जगह, जैसे अक्षय कुमार तो बहुत प्रो इंडिया या प्रो हिंदू बना बैठा था, लेकिन अगर हम अक्षय कुमार की हाल की फिल्में देखें, और जो बिहाइंड द कर्टन जो उसकी वाइफ है ट्विंकल खन्ना, जो स्टेटमेंट देती है, या जो मतलब डायरेक्ट अटैक करती है हमारी आइडियोलॉजी पे या हिंदुइज्म पे, तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि जो व्यक्ति, जो मतलब दो अलग सोच वाले लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं। कंपेटिबिलिटी तो होती है, कंपैशन तो होता है। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड है, हम दोनों मोदी भक्त हैं, ठीक है। अगर वो राहुल भक्त होता तो बताओ आप मुझे, मैं और वो एक घर में रह पाते? मैं और मेरे हस्बैंड है, मैं चलो अपना एग्जांपल देती हूँ, तो हम लोगों की सोच, आइडियोलॉजी बिल्कुल मैच करती है। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं किसी एक दो चीज में, लेकिन एज एन होल इतना बड़ा नहीं होता। तो ट्विंकल करना पूरी लेफ्टिस्ट, अक्षय कुमार पूरा राइट। अब ये दोनों एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं, कैसे सरवाइव कर सकते हैं? तो अक्षय कुमार की लेटेस्ट फिल्म में आप देखो कि जैसे अतरंगी में उन्होंने जैसे टारगेट किया है, और प्रोड्यूसर भी अक्षय कुमार है, तो इसका मतलब यह है कि उसको किसी की स्क्रिप्ट पे तो नाचना नहीं है, स्क्रिप्ट उसकी थी, ठीक है, प्रोड्यूसर ही करता धरता होता है।
तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा दिमाग में वो करता है, ब्लिंक होता है मुझे कि ये क्यों ऐसा होता है। फिर आप देखो करीना कपूर बोलती है मत देखो हमारी फिल्में, इसका मतलब उसको इतना पैसा बाहर से आ रहा है कि उसकी फिल्में देखो ना देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क उनको नहीं तो पड़ता। टारगेट है कि भारत की हिंदू लड़कियों को इन्हें बिगाड़ना है, हाँ, और उन्हें बिगाड़ के हमें करीना कपूर खान बनाना और बाद में तैमूर और जहांगीर पैदा कर रहे हैं। ये एक यस। ऐसा मतलब पूरा दिखाते हैं, और हमारी जो बच्चियां होती है बड़ी वनरेबल है, परिवार में उनको इस तरह के संस्कार भी नहीं मिलते हैं जिस तरह से हम लोग जानते हैं। हम जितने नजदीक से इन लोगों को जानते हैं और हम वैसे जो है संस्कार हमारे बच्चों को देते हैं, तो एक आम पेरेंट्स के लिए उसको नहीं पता होता है कि ये क्या मतलब प्रोपोगेंडा चल रहा है, तो वो कैसे वो प्रोपोगेंडा के अगेंस्ट उनको तैयार करेगा। तो वो बच्चियां जो है उनको लगता है कि करीना की लाइफ है, या ये जो भी किरण राव है या गौरी खान है, इनकी जो लाइफ है वैसी हमें लाइफ चाहिए, और हमारा वाला जो शाहरुख और सलमान है वो सबसे अलग है। हम्म, तो ये कैसे एक लव जिहाद के थ्रू पूरा प्रोपोगेंडा होता है, इसमें ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, विमेन ट्रैफिकिंग करते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं। बिलीव मी, बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का चलता है। अभी एब्सोल्युटली। एक 5-6 दिन पहले एक व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं दूंगी क्योंकि अभी वो उसकी जांच चल रही है, सलमान खान पे ये आरोप लगाया कि वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और जिन औरतों को उसने मारा है या यूज किया है या उनको करा है, उसको उसी के ही पनवेल वाले फार्म हाउस पे आप जाकर खोदोगे तो आपको उसमें से बहुत सी लाशें मिलेगी। अब शक के दायरे में तब आता है क्योंकि जब ये जिया के कातिल को बचाता है, सूरज पंचोली को, तो मुझे शक के घेरे में आता है। फिर जैसे सुशांत सिंह राजपूत के पहले दिशा की डेथ होती है, तो उस वक्त भी सूरज वहीं पे कहीं होता है, और ये जो एक ग्रुप है उस ग्रुप का कनेक्शन सलमान खान के साथ है। तो ये जो बीइंग ह्यूमन सलमान ने बनाया है वो एग्जैक्टली आप जो कह रही हो उसका ही एक रूप है कि बीइंग ह्यूमन यहाँ के जरिए ये ओके ब्लैक के हियर, पैसे को व्हाइट करते हैं। हाँ, यहाँ मैं थोड़ी इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि एक बात मुझे बतानी है व्यूअर्स और व्यूअर्स को कि रिसेंटली एक दिन पहले देयर वाज अ रिपोर्ट दैट देयर वाज दिस निर्भया स्क्वाड in Mumbai, or this will protect girls and women in Mumbai, or perhaps Maharashtra. Now, you know who were the first people who actually tweeted saying that this is a wonderful thing? It was Salman Khan. Okay. And then the other stars like Sara Ali Khan and all these other people. Okay. They did not talk about Disha Salian. They did not talk about Jia Khan. They did not talk about Janvi Kukreja. And now they are interested in the Nirbhaya squad. What hypocrisy. अच्छा, एक मैं सारा अली खान का आपने नाम लिया है, तो मैं अभी 2-3 दिन से ये सोच रही थी, जैसे ही धनुष ने अपने जो शादीशुदा लाइफ को 17 साल की शादी को खत्म करने का वो दिया, अतरंगी रे फिल्म आने के बाद ही क्यों हुआ? और सारा अली खान मुझे ज्यादा डिस्टर्बिंग इसलिए लगती है क्योंकि ये बंदी ने जैसे ही सुशांत के साथ फिल्म करी, सुशांत का करियर खत्म हो गया। इस बंदी ने जैसे ही फिल्म वो जो दूसरा एक्टर है ना जिसके साथ इसके लव अफेयर्स की बहुत बातें सुनाई दे रही थी, केदारनाथ। ये खुद ही मतलब वो कौन सी फिल्म थी कि जिसमें ना ये केदारनाथ, इज इट केदारनाथ? केदारनाथ तो सुशांत के साथ थी, हाँ। और उसके बाद में अतरंगी है ना? अतरंगी नहीं, नहीं, अतरंगी रे में तो वो धनुष के साथ आई। उसके बीच में एक और एक्टर था जिसका मतलब अभी करण जौहर ने उसको अपनी फिल्म से भी निकाला और फिर बड़े बड़े प्रोड्यूसर ने उसको अपनी फिल्म से निकाला। या वो 3-4 हीरो के साथ भी आया हुआ है, मतलब एक ग्रुप कोई फिल्म थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा प्यारा सा नाम, इनके कुछ अफेयर्स के भी बात सुनाई दे रही थी। अगर कोई दर्शकों में से उसका नाम बता पाए तो मैं रिकॉल, कार्तिक आर्यन। सी आप में से थैंक यू सानिका, आपने मेरी हेल्प की। सो कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म आने से पहले इसने एक पूरी थीम बनाई कि मेरे को बॉयफ्रेंड चाहिए तो कार्तिक आर्यन जैसा, और हर जगह, और सडनली फिर उसकी फिल्म आती है और उसके बाद में कार्तिक आर्यन का भी करियर चौपट होता है। जैसे सुशांत को सभी ने बॉयकॉट करके उसको हर बड़े बड़े बैनर ने उसको हटा दिया, जैसे दीपिका का भी हुआ, सारा अली खान थी। फिर कार्तिक आर्यन के साथ भी यही हुआ, उसको भी हटाया। फिर धनुष, और ये लोग सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को के साथ ब्रेकअप चल रहा था, ठीक है, इसके साथ फिल्म करने के बाद ही सबके ब्रेकअप हुए। और इसी तरह से तीसरा धनुष के साथ इसने फिल्म करी और धनुष अपनी शादी खत्म कर रहा है। इसका भी आगे खुलासा होगा, हमें धीरे से बताएं। पर कहीं ना कहीं, और सारा अली खान सस्पिशियस इसलिए भी लगती है कि वो इतना ज्यादा फिल्में आने से पहले मंदिरों में जाती है,
और फिल्में करेगी एंटी हिंदू और पूरा लव जिहाद वाला एंगल होगा। केदारनाथ में देखो पंडित की बेटी बनती है और एक खच्चर चलाने वाले मुल्ले से प्यार में पड़ जाती है ना। इसी तरह से अतरंगी रे में वो बोलती है मैं ठाकुर की बेटी और वो कतई मियाँ भाई है, और उसके पीछे पूरी पागल हुई बताई जाती है एक फैंटेसी दिखा के। तो सारा अली खान को इसलिए रखा गया इन्होंने इस तरह से कि है वो हाफ हिंदू हाफ मुस्लिम की बेटी, फिल्में सारी करेगी लव जिहाद को दिखाने वाली, और बिहाइंड द डोर वो हर जगह मंदिर मंदिर में जाके हिंदू लड़कियों को भी अपनी ओर कर रही है और फिल्मों में ऐसे दिखा रही है, और वो एक अपना एक ऐसा रूप दिखा रही है कि सी इज द रियल सेक्युलर। अगर रियल सेक्युलर है तो इसके पिता ने सारा अली खान का सगा भाई इब्राहिम, यानी उसका नाम है इब्राहिम लोदी की जगह उसको बिठा दिया इब्राहिम बना के। दूसरा भाई तैमूर लंग है, उसकी जगह तैमूर को बिठा दिया, और जहांगीर की जगह जहांगीर को बिठा दिया। तो ये जो तीनों आक्रांता है वो तीनों आक्रांता तो सारा अली खान के भाई है। अब ये छोटी चीज है, कोई माइंड नहीं करेगा, लेकिन ऐसे ही सॉफ्ट पावर काम करता है। दीपिका के केस में भी ऐसे हुआ ना। अब आप देखो दीपिका इतने बड़े जोकर से कैसे शादी कर सकती है, वो कितना बड़ा जोकर है, ना तो उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है ना उसमें इंटेलिजेंस है, वो क्या कपड़े पहनता है कैसे घूमता है, मतलब कोई भी एक लड़की है, सेंसिबल लड़की है। अगर दीपिका को स्क्रिप्ट का इतना पता चलता है और उसकी हर फिल्में हिट होती है तो उसमें थोड़ी बहुत तो अक्कल होगी, तो कोई भी अक्कल वाली इंसान एक जोकर से कैसे शादी करेगी जो जोकर की तरह घूमता है, जो कहीं भी कुछ भी बोल देता है, जो कहीं भी कैसे भी बिहेव करने लग जाता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या पब्लिक प्लेस में। तो ऐसे जोकर से कैसे कोई शादी कर सकता है यू नो। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं एक शादीशुदा महिला हूँ, मैं हमेशा चाहूंगी कि मैंने जब शादी करने से पहले ही मेरे दिमाग में ये था कि मुझे एक सेंसिबल इंसान चाहिए, मुझे मुझसे ज्यादा मैच्योर इंसान चाहिए, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो प्योर मतलब कि एक इंडियन पर्सनैलिटी जैसा हो, जो फॉर्मल्स पहनता हो। मैंने अपनी आंखों पे वही चित्र बिठा रखा था, मुझे हस्बैंड ऐसा मिला और मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा फॉर्मल वेयर्स में देखना पसंद करती हूँ। तो क्या दीपिका की सोच ऐसी थी कि ऐसे जोकर को पसंद करे जो नीचे घाघरा और ऊपर क्रॉप टॉप पहन के घूम रहा हो, या जो दो चोटी बनाता हो, एक यहाँ से मगर काजल पहले तो वो सीधा साधा था, अभी तो ऐसे बन गया अभी। और फिर आप देखो कि वो दीपिका का जेएनयू में जाना, कन्हैया कुमार के पास खड़े रहना, बात बाहर आई कि 5 करोड़ दीपिका ने उसके लिए, तो ये जो पीआर इनका काम करता है, तो लड़कियों को ये लगता है कि दीपिका कन्हैया के साथ खड़ी है, बॉलीवुड वालों को पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, ठीक है। तो दीपिका हाँ पॉलिटिकल व्यू हो सकते हैं, वो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दे सकते हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में जाके कन्हैया कुमार जैसे बंदे के साथ खड़ा रहना जिसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है, उसको सपोर्ट में वो आती है दीपिका पादुकोण, तो ये क्या समझ में आता है। तापसी पन्नू का आप देखो कि तापसी पन्नू ने बहुत सी ग्रेड की फिल्में करी है कि जिसमें उसकी फीस शायद 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी। तो उस तापसी पन्नू के पास 500 करोड़ की वो इनकम कहां से मिली कि जो कहीं अकाउंट्स में ही नहीं थी, अनअकाउंटेबल इनकम। और उसके बाद देखो अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू दोनों में साथ में ही दोनों पे रेड गिरी, और वो रेड में दोनों के पास से अनअकाउंटेबल इनकम इतनी मिली 500 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, कोई छोटी अमाउंट नहीं है, 5 करोड़ नहीं है, इट्स 500 करोड़। इतनी तो उसने लाइफ टाइम में कमाई नहीं है, इतनी तो उसने फिल्में भी नहीं करी है, उसने बहुत ज्यादा अपनी फिल्मों से 20-25 करोड़ कमाया होगा तापसी पन्नू ने। तो ये पैसा मगर काजल जो इम्पोर्टेंट है उनका रिश्ता क्या है अंकिता के साथ या कटरीना के साथ, कि इन लोगों ने इतना महंगा गिफ्ट दिया है उनको। what is a relationship? I mean, see, if I'm your best friend, you know, I'll think of giving you a diamond jewelry, but if I'm not your friend, I'm just acting in another film, why would I give you a diamond jewelry? और उसमें भी अगर सलमान खान है और कटरीना के साथ अलग हो चुका है, राइट, और फिर वो 3-4 करोड़ की गाड़ी दे रहा है, क्यों दे रहा है? हाँ, exactly. ये दान उसने मलाइका अरोरा को क्यों नहीं दिया जब उसने उसके भाई के साथ डिवोर्स लिया? तो खुद की भाभी पर दया नहीं आ रही है, उसको तो जरूरत भी थी। और वो खुद मलाइका अरोरा ने स्टेटमेंट दिया है पब्लिक डोमेन में कि मेरे बच्चे की फीस तक मैं भरती थी, मेरे बच्चे की फीस भी ये लोग नहीं भरते थे। ये मलाइका अरोरा के पब्लिक डोमेन में स्टेटमेंट है। तो वो सलमान खान जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसकी शादी पे 4 करोड़ की गाड़ी दे रहा है, वो अपने ही नेफ्यू की फीस नहीं भर रहा है। हाउ शेम इट इज, तो
So, डेफिनेटली इसके Kajal, पीछे जो है, see, coming back to this, see these gifts, these expensive gifts. You remember Jacqueline was also getting very expensive gifts from this con man, Sukesh. हाँ? और ऐसे लगा कि उनके पीआर तो काम कर रहे थे कि जैसे ये फंस गई उसमें, और ये सुकेश ने उसको फूल किया, मगर सुकेश ने क्या किया, सुकेश ने ये जो सेल्फीज है पूरा पोस्ट किया, तो एवरीबडी न्यू दैट बोथ आर प्लेइंग द सेम गेम। तो ये गिफ्ट्स क्यों गया उनका ब्रदर को, फादर को, मदर को, गाड़ी, सब कुछ दिया, ये क्यों? और आप देख रहे हो कि सुकेश में ऐसा क्या है, कुछ भी तो नहीं। और जैकलीन जो कि कोरोना के वक्त, जब फर्स्ट कोरोना वेव था, तब तो महीनों तक, 6 महीने तक तो सलमान खान के साथ उसके फार्म हाउस पे थी, उसको खुश कर रही थी। और सडनली फिर सुकेश का उसकी लाइफ में आना होता है, और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जो है वो सुकेश जैकलीन को दे रहा है। और जैकलीन जो ऑलरेडी सलमान खान के साथ एक रिलेशनशिप में है, राइट, क्योंकि सलमान तो एट अ टाइम 3-4 को लेके ही घूमता है। yes. तो वो फिर सलमान के ही सामने सुकेश के साथ है, और सुकेश जो है खुलेआम उसको गिफ्ट भी दे रहा है। ऐसे सारी पिक्चर्स भी अभी सामने आई। अब आईटी वाले जो है पूछपराछ कर रहे हैं, जैकलीन को भी बुलाया गया, उससे भी पूछा। तो कहीं ना कहीं कुछ जो तार है, ये एक पीआर कंपनी जो है ऐसी बैठी है बॉलीवुड में, जो एक्चुअली पीआर कंपनी नहीं है, जो सलमान खान के भाई चला रहे हैं, सोहिल खान। और उसी से कनेक्शन दिशा का भी था, सुशांत का भी था, जिया का भी था। और कहीं ना कहीं ये सारे लोग जो है इनके ट्रैप में आ चुके हैं। मौनी रॉय, मैं आपको बताती हूँ, सलमान खान ने कुछ अलग ही जाके मौनी रॉय को एक अलग ही लेवल पर, कुछ ज्यादा ही उससे वो दिखाया। जब आप बिग बॉस में भी देखते थे तो सलमान खान बार बार, जितनी बार होस्ट करता, तो बाहर से मौनी रॉय को हर उसने बिग बॉस में गेस्ट में बुलाया है। हाँ. इससे क्या पता चलता है कि मौनी रॉय जो है वो सलमान की करीबी है। yes. फिर सलमान ने अपनी एक फिल्म में उसको गाना भी दिया था। हाँ. अक्षय कुमार के साथ तो मौनी रॉय फिल्मों में आती ही रहती है। और सडनली मौनी रॉय का एक ऐसे बंदे से शादी करना जो बिल्कुल अनपॉपुलर है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो क्या इसको एक वेपन की तरह यूज किया जाता है ऐसे लड़कों को, इन एक्ट्रेस के थ्रू, और ये इनके चक्रव्यूह में फंस जाता है। अब जो मतलब जो सेलिब्रिटी नहीं है या जिसका कुछ लेना देना नहीं है, वो इनके चक्रव्यूह में फंस जाता है। बेचारा बाहर निकलने की सोचे तो भी कैसे सोचे, क्योंकि यहाँ तो मगरमच्छ बैठे हैं सलमान खान जैसे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कहीं ना कहीं अगर किसी पावरफुल इंसान के साथ में वो रहेगा, तो पावरफुल इंसान में तो इतनी पावर है कि वो तो इनको 2 मिनट में साइड में उठा के फेंक देगा। एब्सोल्युटली काजल, वेरी वेरी ट्रू। ऑल्सो मुझे एक और बात कहनी थी कि जब आप विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी के पिक्चर्स देखते हैं या पहले के पिक्चर्स देखेंगे, तो लगता है कि ये दो अनजान लोग हैं, दे आर स्ट्रेंजर्स। How can they meet? How can they fall in love? How did they get married? And he looks so upset and she looks, somewhere else, as though she's in some other world. कैसे ऐसे कपल शादी करते हैं और किस लिए शादी होती है? देखिए, मुझे ना सबसे ज्यादा फिशी तो ये लगता है कि कटरीना कैफ एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर तो है ही है। अगर मैं दोनों की वर्थ देखूं या वेल्थ वर्थ देखूं, तो कटरीना के पास 250 करोड़ की वो मालकिन है, और उसके सामने विक्की कौशल जो है 25 करोड़ का मालिक है। ठीक है, अब क्यों कटरीना जैसी एक एस्टेब्लिश्ड जो है लेडी, वो एक ऐसे व्यक्ति से कैसे शादी करेगी जो वेल्थ में उससे 10 गुना कम है? और जिसको सलमान खान जैसे व्यक्ति का 4 करोड़ का। काजल, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? Some of them are requesting. Yeah. So what I'm telling you, ki see, like Katrina Kaif, she has worth of 250 crore. Yes. And Vicky Kaushal has 25 crore. Now the thing is, ki why she would marry with a person who is less than her, wealth wise, right? If any girl, especially in Bollywood, like like Kareena Kapoor Khan, she married to a Nawab, Saif Ali Khan. He has more worth than Kareena Kapoor, right? And her family. In the same way, why Katrina would marry a person who have a less worth?
So the Yeah. the point is कि, and then Salman Khan gifted her 4 crore worth car, right? So why would she marry a person who is less capable, and he's not that popular like Katrina? Yeah. And then Salman Khan gifted her that 4 crore car. So all thing together, this is fishy, and all thing together कि ये प्यार तो नहीं हो सकता. Because look at Vicky Kaushal, look at Katrina Kaif, two और opposite people. अजीब सा बात ये भी है काजल, that the list of guests are the same. Okay. Yeah. So every wedding the gifts the guests are the same. From the other side, विकी के साइड में से या मोनी के हस्बैंड के साइड में से सिर्फ पेरेंट्स और कोई नहीं होता है. हाँ, तो पूरा गेस्ट लिस्ट भी उन लोगों ही they fix it. So even if you have noticed that Katrina, when she broke up with Ranbir Kapoor, that Katrina Kaif, she said on some public platform, she broke up very bad, like Salman Khan को छोड़ के वो रणबीर के पास गई थी, and she was in live-in relationship with Ranbir Kapoor. And जो वो breakup था, that was not healthy breakup. बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ था. दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते थे, और इनकी एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में ये दोनों एक साथ कहीं दिखे भी नहीं थे, प्रमोशन में भी, और कटरीना ने मना कर दिया था. उस फिल्म को इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से पूरा किया था, प्रोड्यूसर ने. काफी महीनों तक वो फिल्म अटकी हुई थी बिकॉज ऑफ कटरीना और रणबीर कपूर के झगड़े आफ्टर ब्रेकअप. तो वो रणबीर कपूर को क्यों बुला रही है अपनी शादी में? Absolutely. Yeah, so this is and it's very strange. And the fact is that, see, I don't know even whether the hotels, actually sponsor the weddings. That also I have a doubt, because see, it's all started with what you call this actress Priyanka Chopra. She wanted a wedding very similar to Princess Diana's wedding. Okay, so that's how she got her veil and everything done. Now, the guests were also people that she didn't know. It would have been the Queen of England or somebody else and all that, So this, what I'm coming back to, Kajal, is that these weddings are not weddings. These weddings are something else. There is something else behind this. See, जब तक आता नहीं है पब्लिक प्लेटफॉर्म में, we cannot say anything. Exactly. But इतना तो दिमाग हम में है कि कुछ तो है. Like you said, कि these weddings are not like wedding, contract. Maybe it's a contract, maybe something else. Maybe See, Kajal, you look at your wedding. Your husband's family came, your family came. That is a wedding where people come together. No, so it is a marriage of two families, right? And then of course the friends come. They are the extended people. यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है. How are these people connected? And maybe उसका खुद का अपना कुछ होगा. Maybe यहाँ की सिटीजनशिप उसको लेनी होगी कटरीना की. जैसे हमारे लोग भी तो फॉरेन की सिटीजनशिप लेने जाते हैं. अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए तो किसी अमेरिकन से शादी करते हैं. ब्रिटिश की चाहिए तो ब्रिटिशर से शादी करेंगे. तो वैसे उसका कुछ होगा, उसको इंडियन से शादी करनी होगी. और ये बकरा मिल गया विकी कौशल, जो बहुत ही लो बैकग्राउंड से आता है, जिसकी फैमिली जो है बहुत ही सिंपल फैमिली है. Yes. मौनी रॉय का भी मुझे तो बहुत ही शॉकिंग लगा. मौनी रॉय का जब मैंने देखा, एंड इवन अंकिता लोखंडे का तो काफी टाइम से उसके साथ एक अफेयर था जिससे उसने शादी करी है. एंड कहते हैं कि ही इज अ बिजनेसमैन. पर और कल काजल, and a few days back she said the reason she is very happy that she married Vicky Kaushal is because he loves to party. Or and the wedding had 3 days of only parties. So she's married the correct husband. Now you said you were looking at your husband's intelligence, his look, his whether he's a patriot. These are the qualities that you looked. But look at Ankita's qualities. She wanted people who party, who love parties. That was a qualification. Yeah, and I don't think कि कैसे, मतलब अंकिता लोखंडे जो कि बहुत एक अलग, वो अपना थोड़ा सा भक्ति वाला भी सीन दिखाती है जब गणपति होता है, या वो सब भी एक दिखाती है. फिर सुशांत के बाद में उसका एकदम से बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाना सुशांत के लिए, और कुछ ही दिन हुए थे और फिर उसका वो पार्टी करना.
और उसके बाद ही उसका एकदम उसका जिसके साथ अफेयर होता है वो उसी वक्त जो है वो सामने आता है पब्लिक के। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेसमैन ढूंढते हैं ताकि उनके बिजनेस के नाम पर ये अपने काले कारनामे हाँ, चलाए, और इनकी जो तो वो पीआर होगा। कंपनी होती है उनका हाँ, काम ही ये दिस इज होता द है। पॉइंट, दिस इज हाँ, द करेक्ट पॉइंट दैट यू हैव कम टू, काजल। तो उनके बिजनेस के नाम पर ये अपना जो चलाना होता है, जो जो गलत काम करने होते हैं वो करते हैं। इवन तो डार्क वेब का बहुत बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा बिजनेस जो है डार्क वेब का, यू नेम इट, वो सारी चीजें उस पे बिकती है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, सबसे ज्यादा रेट्स छोटे बच्चों के होते हैं, और छोटे बच्चों की बोलियां लगती है। आपको क्या लगता है, डांस इंडिया डांस या जो भी छोटे बच्चों की कंपटीशन है, जिसकी जज शिल्पा शेट्टी है और जिसका पति जो है वो अभी इन सब चीजों में 2 महीने की जेल जाके आ गया है, क्या वो छोटे बच्चों को छोड़ते होंगे? एब्सोल्युटली। और एंड छोटे बच्चे काजल, वनरेबल है, see, डरा the देते हैं viewers तो are, बच्चे yeah, कह भी नहीं viewers are पाते हैं। asking कि आपको विकी जैन के बारे में और भी जानकारी है? नहीं, मेरे पास कोई, ये ऐसे ही तो लोग ढूंढते हैं कि जो कहीं जिनके बारे में कोई नाम नहीं होता, कोई चर्चा नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती है, और नहीं, आपको मगर मिलेगी भी नहीं। here there is a point, Kajal. See, when she was having an affair with so-called affair with SSR, वो टाइम पे भी विकी जैन था। ओके, सो ये लोग बोलते हैं कि इसको एक हनी ट्रैप के जैसे यूज किया था, और एसएसआर को फंसाने के लिए। तो वी डोंट नो, बट दैट मैन वाज देयर इवन एट दैट टाइम, विकी जैन। पता नहीं, अब इन लोगों का सब कुछ अलग ही होता है। अब हमारे जैसी जो प्योर इंडियन विमेन है, वो तो शादी करना, बच्चों का देखभाल करना, फैमिली की देखभाल करना, उसी से। और और फिर एक और बात मैं बोलूं, काजल, कुछ कुछ साल पहले ये उर्वशी रौतेला, दिस इज अनदर कैरेक्टर, उसने कहा था कि ये वर्जिनिटी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मूवी के कनेक्शन में ही बोला होगा। आपको मगर उर्वशी रौतेला का पता है क्या है हाँ, उसका? वही मैं बोल रही हूँ। आप उर्वशी बताइए। रौतेला जो है, दुबई के एक अरब की वो बन के बैठी है। अब मैं क्या हाँ, बोलूं, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है, मैं ऐसे हाँ, शब्द यूज भी नहीं करना चाहती आपके हाँ, प्लेटफॉर्म पे। हाँ, हाँ, और इन लोगों का, शेख लोगों का क्या होता है कि शादी वो शेख के साथ ही करेंगे, प्योर अरेबिक लड़की के साथ ही करेंगे वो शादी। हाँ, मगर वो साइड में क्या है ना कि इनकी आदत होती है 8-10 रखने की। हाँ, तो वो 8-10 ऐसी सेलिब्रिटी टाइप की लड़कियों को, मॉडल टाइप की लड़कियों को रखते हैं। हाँ, और वो इसलिए रहती भी है क्योंकि उनकी भी जरूरतें होती है, वो पूरी हो जाती है, हाँ, जो इनकी फाइनेंशियल नीड है वो। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, एक मैं ना आपको 2 चीज बताती हूँ। एक तो हाँ, मैं इसका ताल्लुक आपको सैरोगेसी से बताती हूँ। हम्म, किरण राव ने सैरोगेट बेबी किया, आमिर हाँ, खान का, ठीक है, जिसका नाम आजाद रखा है। शिल्पा शेट्टी ने सैरोगेट बेबी किया अभी। प्रियंका चोपड़ा का 2 दिन पहले न्यूज आता है कि वो सैरोगेट बेबी कर रही है। तो आप समझ रहे हो कि ये, और इसमें सुषमा जी ने सदन में कहा था, सुषमा स्वराज जी जो अब नहीं है हमारे बीच में, कि ये सैरोगेसी है ना, ये एक अलग लेवल पे ले जा रही है। ये एक तरह से क्राइम है कि आप एक महिला को, हाँ, अगर किसी में प्रॉब्लम है, और उसका यूट्रस ही, अगर किसी कारणवश उसको कोई बीमारी हो गई और उसका यूट्रस रिमूव कर दिया गया है, हाँ, और फिर सैरोगेट करते हैं, तो समझ में आता है ये बात। हाँ, हाँ, मगर अगर कोई हेल्दी है, अब ये तो इतना योगा करती है, इतना प्राणायाम करती है शिल्पा शेट्टी, और वही सारे दिन अपने इंस्टा पे दिखाती रहती है, तो उसको सैरोगेसी की क्या जरूरत पड़ी है? तो आप सोच रहे हो कि कैसे एक भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए, एक इंटरनेशनल प्रोपोगेंडा के अंतर्गत ये सारी कठपुतलियां जो है, पपेट जो है, उनको बिठाया गया है। हाँ, करीना कपूर को तैमूर और जहांगीर नाम रखने के लिए करोड़ों रुपए मिले होंगे, मैं वो आपको गारंटी से कहती हूँ। एब्सोल्युटली। और दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि ये लोग मतलब शादी करते हैं, उसके बाद में आप देखना कि कभी भी जो शादी के बाद में इनकी जो लड़कियां होगी, जैसे कि ये शिल्पा शेट्टी है, या अंकिता हो गई, या प्रियंका चोपड़ा हो गई, या कोई भी, दीपिका है, कोई भी एक्ट्रेस है, श्रीदेवी है, या कोई भी है, इनके शादी के बाद के अफेयर्स कभी हमारे बीच में नहीं आएंगे, कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे। हाँ, इनके अफेयर्स होते हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं आते, लेकिन ये लोग टीवी सीरियल ऐसी बनाते हैं, एकता कपूर जैसे लोग, कि एक ही शादीशुदा औरत के 4-4 अफेयर दिखाते हैं। हाँ,
समझ रहे हो? यही जो है अपने फिल्मों में दिखाते हैं कि मंगलसूत्र मतलब कुत्ते का पट्टा, गले में मैं कुत्ते का बेल्ट कैसे पहनूं, और वही सोनम कपूर अपनी फिल्म में ये डायलॉग बोलती है और अपनी शादी में बकायदा वो मंगलसूत्र पहन रही है, सिंदूर पहन रही है, बिंदी पहन रही है और प्रॉपर इंडियन विमेन बनी। और अच्छा, प्रियंका चोपड़ा जो कि बिल्कुल लेफ्टिस्ट है, जो हमेशा हर इंडियन रिचुअल्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिफेम करती है, वो बंदी अपने पति को विदेश से भारत बुला के भारत की परंपरा के हिसाब से शादी करती है। और हमारे बेवकूफ लड़कियों को ये समझ में भी नहीं आता है। वो भी फिर डायलॉग देती है, अरे मंगलसूत्र क्या पहनना, ये तो कुत्ते का पट्टा हो गया। मैंने अभी नहीं पहना है मंगलसूत्र क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा, मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो मैं गले में कुछ नहीं पहनती हूँ, मुझे ईचिंग होता है और मेरे को रैशेज हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे पसंद है मंगलसूत्र पहनना। लेकिन ये लोग मंगलसूत्र को कुत्ते का बेल्ट बोल रहे हैं। और फिर खुद ही ऐसी शादी कर रहे पूरे भारतीय रिचुअल्स और धूम धड़ाके के साथ में, और ये कन्यादान को कन्यामान कहकर कन्यादान को डिफेम करते हैं। पर जब इनकी शादी होती है उसमें बकायदा कन्यादान के मंत्र जाप उच्चारण होते हैं, तो ये कन्यादान क्यों कर रही है तब? एग्जैक्टली। एंड नॉट ओनली दैट, वो शादी में उनको केरला टाइप वेडिंग चाहिए, केरला टाइप साड़ी चाहिए, यू नो, हाफ द टाइम बिकिनी में पानी में बैठी है। हाँ, शादी के समय में पूरा, यू नो, हाँ बिल्कुल, जैसे इनसे बड़ा तो भारतीय नारी कोई है ही नहीं। आपको और हमको छोटा दिखा दे, ये इतनी बड़ी भारतीय नारी एक दिन के लिए बन जाती है। Absolutely. Very true. Yeah. Also, I wanted to ask you, Kajal, why this, when you were talking about surrogacy, why they want only white children? Yes, आप देखो करण जौहर, उसके दोनों बच्चों की आंखें आपने देखी? करण जौहर की आप आंखें देख लो, उसके दोनों बच्चों की देख लो। फिर आप तुषार कपूर का देखो, उसके बाद में एकता कपूर के बच्चे देखो। ये सब सैरोगेट में क्यों जा रहे हैं? या तो ये लोग नपुंसक है, ठीक है, कि शादी करके बच्चे पैदा करने का इसमें है ही नहीं, तो सैरोगेट में भी जा रहे हैं, तो अपने तो उन्होंने डोनेट किए होंगे ना स्पर्म, तभी तो जाके इनका बच्चा पैदा होगा, नहीं तो होगा कैसे? एब्सोल्युटली। मगर यहाँ भी एकता कपूर जो है, एक प्रॉब्लम है, चार शादियां दिखाती है अपने टीवी सीरियल में, खुद एक शादी नहीं कर रही है और बिना शादी किए सैरोगेट बेबी ले आ रही है। Also, Kajal, there is a problem here. यहाँ का प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिटिशियंस इनके साथ बहुत जुड़ गए हैं और उनका प्रमोशन करते हैं, और इसी वजह से इन दोनों को पद्मश्री मिला। हाँ, इनकी वजह से ही मिला, और मैं नाम नहीं लूंगी, पर कहते हैं ना कि जब बहुत बड़ा जब कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, तो उसमें कुछ एक लोग जो है वो वैसे आ जाते हैं और वो उसका जो है दुरुपयोग करते हैं अपने पद का, और ये दुरुपयोग की वजह से एकता और करण जैसे लोगों को जो है पद्मश्री मिल जाता है। और वहीं दूसरी ओर घर किसका टूटता है? कंगना का। पर कंगना के फेवर में नहीं आते हमारे जो हाल के जो आईएनबी मिनिस्टर है, राइट? मैं तो मोदी भक्त हूं, देखो बहुत क्लियर है मेरा, और मैं खुल के बोलती हूँ, मैं बहुत बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैं बीजेपी की स्टार प्रचारक हूँ, मैं ग्राउंड पे बीजेपी के प्रचार भी करती हूँ। मगर अगर एक दो लोग व्यवस्था में गलत है, तो उन लोगों को एक्सपोज करना पड़ेगा, वरना वो पूरी व्यवस्था खराब कर देंगे हमारी। अब आप जैसे और काजल, जैसे आपने बोला उसी तरह मैं भी ऐसी हूँ, मगर मैं अपना आई मेक इट माई ड्यूटी टू एक्सपोज what is happening wrong. There will be some few black sheep. अच्छा, अनुराग ठाकुर जो है वो हिमाचल से, कंगना जो है हिमाचल से, अपने ही हिमाचल की बेटी की रक्षा के लिए ये बंदा आगे क्यों नहीं आया? आई एम नॉट सेइंग कि भाई मेरा कोई इशू है, मेरा कोई इशू नहीं है किसी से, सब अपने हैं, और मैं तो बहुत प्रो बीजेपी हूँ, मुझ पे कोई लांछन नहीं लगा सकता कि मैं एंटी बीजेपी हूँ। परंतु अगर व्यवस्था में एक दो लोग गलत है तो उन गलत लोगों को तो बोलना पड़ेगा, और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, राइट? तो कंगना का घर टूटता है, कंगना पे अटैक होता है, कंगना को धमकियां मिलती है, कंगना जितना खुल के बोलती है, इतना खुल के कभी अनुपम खेर नहीं बोला, कभी विवेक अग्निहोत्री नहीं बोला। विवेक अग्निहोत्री
ऐसे बहुत प्रो बनेगा, लेकिन अभी विवेक अग्निहोत्री शाहरुख खान के बच्चे को बचाने के लिए खुलेआम मैदान में आ जाता है और ड्रग्स को जस्टिफाई U-turn करता है और कर दिया। नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके कहता है कि हाँ, जो सेंटर एजेंसीज है इनको हटा दो। मतलब वो कह रहा है आईबी, एनआईए, ये सारी सेंटर, सीबीआई, ये सबको हटा दो। हाँ। तो मतलब किसको बिठाए हम लोग? नसरुद्दीन शाह को चौकीदारी करने बिठा देते और क्या, है ना? तो हाँ, आप समझ रहे हो कि ये सब एक ही पानी के मगरमच्छ है। शाहरुख खान बड़ा मगरमच्छ है, विवेक अग्निहोत्री छोटा मगरमच्छ है। हाँ, तो वो जहां वजन वहां भजन के 2014 के बाद देखा कि प्रो राइट या प्रो हिंदू गवर्नमेंट है, तो ये उसकी माला जपने लगे। प्रसन्न जोशी का आप देखो, क्यों हाँ, कंगना के फेवर में नहीं आया प्रसन्न हाँ, जोशी? हाँ। इस क्यों? जगह इनको प्रसन्न जोशी, विवेक अग्निहोत्री को हमने सेंसर में बिठाया अध्यक्ष हाँ, बना के, और हाँ। जब से प्रसन्न जोशी अध्यक्ष बना है तब से आप देखो कि कैसी एंटी हिंदू फिल्में आ रही है और एब्सोल्युटली, उसको ये एब्सोल्युटली। सेंसर करे जा रहा है। हाँ, और हमारी एक फिल्म आ रही थी दी कन्वर्जन, जो कि लव जिहाद पे बनी थी, मैं उस फिल्म की ब्रांड एम्बेसडर हूं। उस फिल्म को इन्होंने सेंसर नहीं करा। हम्म, और ये तूफान जैसी फिल्म को सेंसर करते हैं। सेम स्टोरी थी तूफान की और हमारी, लेकिन हाँ, उन्होंने सिक्के का एक पहलू दिखाया, हमने हमारी फिल्म में सिक्के का सही पहलू दिखाया। हाँ। तो क्यों इन्होंने वो नहीं करी? जब ये बहुत ज्यादा प्रो बीजेपी, प्रो मोदी, प्रो हिंदू बनने जा रहे हैं, प्रसन्न जोशी, विवेक एब्सोल्युटली, हाँ, अग्निहोत्री, मिहिर हाँ। भुट्टा, हम्म, तो इन्होंने क्यों ये फिल्म सेंसर नहीं करी? बल्कि इन्होंने हमारी फिल्म अटकाई, मीना जी। हाँ, और आज अभी तक सेंसर नहीं दिया है। 4 स्क्रीनिंग कर चुके हैं, हर स्क्रीनिंग के 45,000 भरे हैं। और अब इन्होंने रिसेंट में दी कन्वर्जन मूवी का आप ट्रेलर देखिएगा, अगर आपने देखा हो तो। इस फिल्म में इन्होंने 18 सीन कट करवाए, एक पूरा एंड का सीन रीशूट करवाया, क्योंकि उसमें हीरोइन जो है वो त्रिशूल से वध कर रही है इस विधर्मी का। तो बोली नहीं, त्रिशूल से वध मत करो, आप गन से दिखाओ। क्यों? ऐसी कितनी फिल्में हैं कि जिसमें त्रिशूल यूज किया हुआ है। एकता कपूर तो अपनी हर टीवी सीरियल में त्रिशूल पहले दिखाती है और उसपे जूम करती है त्रिशूल पे, क्योंकि उस वक्त वो जो महिला होती है वो 3 लड़कों के साथ रिलेशनशिप में होती है, तब आप त्रिशूल को जूम करके दिखाते हो। तो कैसे ये लोग सिस्टमेटिकली एक फ्रेजाइल माइंड को के साथ में अपना सॉफ्ट पावर यूज करते हुए अपना जो इकोसिस्टम है उसको उसके दिमाग में बिठा के उसको एंटी हिंदू करने की कोशिश करेंगे उस इंसान को। उसको खुद को अशेम होगा, खुद को इंडियन बोलने में, हिंदुस्तानी बोलने में। ऐसी ये पूरा माया जाल रचते हैं और ये इसीलिए इनको पैसा मिलता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनका टीवी सीरियल चले या इनकी फिल्म चले ना चले। एब्सोल्युटली, या एंड ऑल्सो सी, मुझे ये भी नहीं पता होता कि सी सब कुछ तो मोदी जी नहीं देख सकते हैं, मगर एक जल की एम्बेसडर उर्वशी को किसने बनाया? और इसको एनजीओ है, अपना अपना ही एनजीओ है, जिसमें वो वाटर ये करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। उसका पिताजी और माताजी सब कुछ है उसके अंदर। So now she herself nominates this and asks Shekhawat, please give me this role. Doesn't Mr. Shekhawat do his research? As a minister, he should do research, ना? कितने लोग हैं उसके नीचे? पर देखिए मोदी जी, मैं वही कह रही हूँ कि अकेले कहाँ जाएंगे। मोदी जी को लगा अपने लोग हैं, इनको इस पोस्ट पे बिठाऊंगा, कुछ ढंग का करेंगे, लेकिन उन्हें तो ये नहीं पता होता कि जो अपने लोग हैं वही जो है वो कौरवों की तरह कुछ एक अलग ही षड्यंत्र में चल रहे हैं। Absolutely. और इनकी वजह से क्या होता है, पूरी व्यवस्था जो है वो बदनाम होती है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है तो उसमें उस धर्म वाली ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अधर्मी आ जाते हैं जो धर्म के नाम पे अधर्म करते हैं। तो उन लोगों को बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करना। अगर सही वक्त पे इन्हें नहीं किया जाएगा तो ये दीमक की तरह हमारी पूरी सिस्टम को खत्म कर देंगे। और जो मोदी जी ने मेहनत करके बसाया है उसको ये लोग खलास कर देंगे। Another question I want to ask you, Kajal. See, you would have noticed, because you're speaking so well about this, Big Boss में, there is a conscious effort, to pitch a Hindu girl, with a Muslim boy. And then always have bad language and abuse women, physical, sort of touchings and things like that, kissing and all that. This is a house where corruption exists. How come people do not see it?
आपने लास्ट ईयर बिग बॉस देखा था, पवित्रा पुनिया और एजाज खान का। हाँ। अब आप इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल उठा के देखो, एजाज के पास में कुछ भी नहीं है। उसके पास में जब वो आया था बिग बॉस के अंदर, तो वो लोगों से, उसने 6 महीने का जो लाइट का बिल था वो किसी से उधार लेके भरा था, ये उसने खुद ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला है। हाँ। और ये जो हीरोइंस होती है, इनका कोई दीन ईमान धर्म नहीं होता है, ये तो पैसे के पीछे जाती है। लेट्स बी हाँ। वेरी क्लियर विथ यू। तो क्यों पवित्रा पुनिया जो है वो एक ऐसे बंदे के साथ रिलेशनशिप में जा रही है जिसके पास कोई पैसा नहीं है? एब्सोल्युटली। तो आप समझ रहे हो कि उसको स्पेशल फंड दिया गया है, और जैसे ही वो रिलेशनशिप में वो आएगी, एजाज खान और पवित्रा पुनिया के लोगों को दिखा, अरे वाह क्या जोड़ी है। फिर हमारी जो हिंदू लड़कियां है वो, ये देखो, ये दिस इज लव जिहाद, ये सॉफ्ट पावर की तरह लव जिहाद लड़कियों के दिमाग में डालते हैं। और क्योंकि मैं एक्टिविस्ट हूं, मैं लव जिहाद पे ग्राउंड पे मैं हर हर हफ्ते कम से कम 8-10 लड़कियों को रेस्क्यू करती हूँ, एवरी वीक मिनिमम 8-10 लड़कियों को मैं लव जिहाद से वेरी रेस्क्यू गुड, करती हूँ। वेरी गुड। और मैं अभी आपको एक रीसेंट किस्सा बताती हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा मीना जी, अगर हम लोग ये सारी चीजें मान लेते हैं ना कि चलो प्यार है, प्यार का कोई धर्म नहीं होता है, तो एक पागल लड़की, नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली, वो पागल लड़की की उम्र 17 साल, वो लिटरली पागल है, हाफ उसका दिमाग नहीं चलता है, वो 5-6 साल के बच्चे की तरह बिहेव करती है, जो डिसेबल बच्चे होते हैं ना, वैसी वो लड़की है, वो मेंटली डिसेबल है। उस 17 साल की लड़की को 26 साल का लड़का घर से भगा के ले गया। द गर्ल इज हिंदू एंड द बॉय इज मुस्लिम फ्रॉम सेम सिटी। आई रेस्क्यूड दैट गर्ल। और जब पुलिस चौकी में हम थे, यू वॉन्ट बिलीव, वो जो लड़की 17 साल की थी, 17.5 ईयर की, वो लड़की लॉलीपॉप चूस रही थी। और वही पुलिस की जो बेंच थी, जो पुलिस चौकी में जो बेंच होती है, वो लॉलीपॉप चूसते चूसते उसी बेंच पे सो गई। अब मुझे दिमाग में ये खनका कि कोई पागल लड़की से क्यों प्यार करेगा? मतलब उसको पैसा मिल रहा है कि हिंदू की लड़की ले आओ, हम आपको इतना देंगे। एक लव जिहाद का पूरा रैकेट चल रहा है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये, जिसमें फॉरेन फंडिंग होता है। और इसी तरह से ये लोग जो है सिस्टमेटिकली कन्वर्जन करते हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन करते हैं, लव जिहाद करते हैं, और इन सबका कनेक्शन आतंकवाद के साथ जुड़ा है। Absolutely. ये सारा पैसा जो है वो आतंकवाद। मैंने भी सुना है काजल कि मुल्ला लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण के लिए इतना पैसा 2 लाख। ये एंड वो लड़की ब्राह्मण थी। जो मैं बोल रही हूँ, हाफ जो मेंटली डिसेबल लड़की है, जिसका मैंने अभी आपको किस्सा बताया, वो ब्राह्मण है। और उसके माँ बाप शॉक कर रहे हैं कि हमारी बेटी से तो कोई शादी करने वाला नहीं है, हमारी बेटी को क्यों ले जा रहा है? मैंने कहा इसलिए क्योंकि आपकी बेटी जो है ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का प्राइस टैग जो है वो सबसे हाई है, 8 से 10 लाख रुपए मिलते हैं। इसी बात में काजल, आपका व्हाट इज योर थॉट अबाउट सिद्धार्थ शुक्ला? व्हाट हैपेंड टू सिद्धार्थ शुक्ला? ये तो कोई नेचुरल डेथ तो नहीं था। नो, इट्स नेचुरल डेथ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा जिम करना, बहुत ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना एक लेवल से ज्यादा, और एक्स्ट्रा प्रेशर देना अपनी बॉडी पर। तो और देखिए, सिद्धार्थ शुक्ला का इसलिए मुझे वो नेचुरल, क्योंकि उसका जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ है। जब हम ऐसे संगठनों के साथ जुड़े होते हैं, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं, उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। तो वो मुझे नेचुरल लगा, उसमें कुछ भी मुझे नहीं लगता। अच्छा, फिर दूसरा एक पॉइंट है, जब राज कुंद्रा को ये पोर्नोग्राफिक मूवीज या सीरीज के बारे में उसका अरेस्ट हुआ, तो उसी टाइप के मूवीज और सीरीज बना रहे थे एकता कपूर इन ऑल्ट बालाजी। हाउ कम one person was caught and the other person was not caught? वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रॉमिस किया था पैसे देने का, वो राज कुंद्रा ने अपने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किए। तो मुंबई का जो छोटा पेंगुइन है, वो ये पूरा नेक्सस चलाता है, डार्क वेब से लेके पोर्नोग्राफी से लेके, उन सबका जो लीडर है वो बेबी पेंगुइन है। और उतना हफ्ता बेबी के पेंगुइन को नहीं मिल रहा होगा, इसलिए उसको अरेस्ट करके अच्छे से चमत्कार दिया। वी आर द किंग ऑफ मुंबई, और हमारे इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता।
हाँ, तो राज कुंद्रा को उतना देना ही देना, इसलिए 2 महीने की उसको हवा खिलाई ताकि अब हर महीने हफ्ता पहुंच जाए टाइम पे। तो ये तो एकता कपूर के साथ भी हो सकता है ना? हो सकता है, पर एकता कपूर अच्छा कमाती है इसलिए दे देती होगी टाइम पे। सब कुछ अंडर द टेबल होती है। हाँ यार। और या एकता इट कपूर गोस। तो आपको पता है ना कि सप्लाई करने में तो वो किंग है, महिलाएं सप्लाई करने में। ये जो 7 प्रोडक्शन होम्स है, उनका सबका एक एक क्या बोलता है, स्पेशलाइजेशन है। एक तो हाँ, प्रोड्यूस सबका करते एक हैं। एक। जैसे आपने सब बोला, see there are many women who who after coming from Ekta Kapoor's serials, they say they don't give them any salary for so many months, and they live मैं in very आपको poor. Yeah, मैं बोलिए। आपको एक बात बताती हूँ। इस फील्ड से इसलिए मैं ज्यादा कनेक्टेड हूँ क्योंकि 3-4 लोग जो है उनको मैं काफी अच्छे से जानती हूँ, जो टीवी सीरियल्स में एक्टर एक्ट्रेस है, और एक रिलेशन है, फैमिली रिलेशन। आपको पता है ये लोग कितनी बार मुझसे पैसा लेते हैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए। इवन मैं ऐसे जाने माने सिंगर्स को जानती हूँ, ऐसे जानी मानी एक्ट्रेस को जानती हूँ टीवी सीरियल्स की, ऐसी जानी मानी है ना, एक एक सीरियल में आई हुई है। इनकी हालत इतनी खराब एकता कपूर ने करके छोड़ दी है। और लड़कियों का तो ठीक, लड़कों की हालत उससे भी ज्यादा खराब है कि एकता कपूर बकायदा जो है उन लड़कों को मेल प्रोस्टिट्यूट की तरह यूज करती है और पैसा भी नहीं देती है टीवी सीरियल्स में काम करने का। और और उनको न्यूडिटी क्लॉजेस भी साइन करवाते हैं उनसे। यस, और लड़कों की हालत तो और ज्यादा खराब है। और ये इनके 3-4 लोग जो जिनकी हालत इतनी खराब है, जिनको मैंने हेल्प करी है काफी बार फाइनेंस की, वो अपनी बात बताते हैं ना मुझे, इतना मतलब ऐसा होता है कि तो आप लोग क्यों रह रहे हो इस जगह, कहीं जाके चाय का स्टॉल खोल क्यों नहीं देते, चाय बना के बेचो, उसमें ज्यादा इज्जत है, एटलीस्ट आत्म सेल्फ रिस्पेक्ट तो है। हाँ, पर एब्सोल्युटली। ये एक ऐसा जाल है जिसमें जो एक बार फंस गया वो चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल सकता। इनकी लाइफ इनके हाथ में ही नहीं है, हाँ, ना चाहते हुए भी। उन लड़कियों को मैं आपको बता दूं कि अभी लॉकडाउन में, मैं उस एक्ट्रेस का नाम नहीं लूंगी, काफी पॉपुलर है, बिग बॉस में भी आई हुई है, बट एक एक रात के 5 लाख लेती है। और मुझे बड़ा शौक लगा कि ये तो एकता कपूर की, इसको रेगुलर टीवी सीरियल में भी आती है, बिग बॉस में भी आई, अच्छे तक पहुंची, टॉप 5 तक, और फिर भी इसको 5 लाख लेकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है लॉकडाउन में। मतलब क्या? क्या? और जिसने उसको 5 लाख दिए या जिसके साथ वो गुजारा कर रही है या जिसके पास वो जा रही है, अच्छा मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि ये सब फिक्स होती है। से सपोज कि एक कोई भी टीवी की जाना माना फेस है, वो एक कोई भी हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होती है, कि उसमें ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट के साल में 3-4 वैकेशंस जो भी डिसाइड होते हैं, वो उस वैकेशन पे उस बिजनेसमैन के साथ आउट ऑफ कंट्री जाएगी, वहां हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो भी डिसाइड होगा उतना रहेगी, उसी को ही खुश करेगी। और उस कॉन्ट्रैक्ट का ईयरली एक पेमेंट होता है जो उस बिजनेसमैन से इसको मिलता है। अच्छा। और इसके सिवाय रेगुलर में तो जो वो अपना पर नाइट का जो उसका चार्ज है वो लेती ही लेती है। लेकिन वो जो बिजनेसमैन होते हैं पर्टिकुलर उन्हीं उन्हीं को ही बुलाते हैं, वो उन्हीं के साथ ही होते हैं, फिर वो अलग अलग लड़कियां नहीं रखते। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही रिलायबल सोर्स, जो कि उसी का ही सोर्स है, जो खुद विक्टिम रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बताया। Even what I heard, Kajal, is that even these holidays to Maldives or other exotic places, it's also sponsored. They don't spend even 1 paisa. हाँ, और Everything is paid. नहीं, और वो मालदीव्स के जो पिक्चर्स ये सारी हीरोइंस जो अपने पोस्ट करती है ना इंस्टा पे, वो सब उन बिजनेसमैन के साथ ही वहां जाती है, कॉन्ट्रैक्ट है वो। अच्छा। और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनको जाना ही होता है। अच्छा। और वो पूरा स्पॉन्सर्ड होता है। हाँ. And why do you think that these young girls, see now Sridevi is dead, someone like Janhvi Kapoor or her sister, why do they dress in such small clothes, or they revealing clothes? What is the reason? Doesn't their father need to tell them that you need to dress well?
अच्छा, जानवी और उसकी जो सिस्टर है, क्या नाम बताया आपने? खुशी। खुशी। हाँ, इन दोनों ने तो अभी ट्रांसप्लांट भी कराया है। दोनों बहनों ने, इसलिए ज्यादा दिखाती है अपनी क्लीवेज, क्योंकि पहले तो दिखाने लायक ही नहीं थे। हाँ, फिर विदेश जाके ये हाँ, जो है, मुझे बोलते सिलिकॉन। हुए भी मतलब अच्छा नहीं लग हाँ, रहा है। हाँ, और वो जो रिवीलिंग होता है, उसका बाप हाँ, जो है वो उसको बम पे, किसी जिसकी बीवी मर चुकी हाँ, है, जिसकी हाँ, बेटियां जवान है, वो बम पे किसी जैकलिन हाँ, को बम पे मार रहा है। हाँ, हाँ, इवन आपको मैं बता दूं, अमिताभ बच्चन जो है, हम्म, वो 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 दिखता आपको इस तरह का है, हम्म, लेकिन अगर बॉलीवुड में 2-3 लोग है, मैं नाम देती हूँ, अमिताभ हाँ, बच्चन है, महेश भट्ट है, हाँ, ये जो लोग है ना, पूरी बॉलीवुड की गंध जो है उसके किंग है ये। हाँ, ये सब और कुछ ये तो। लोग जो है बकायदा हम्म, लड़कियां सप्लाई करते हैं, व्हाइट गर्ल्स, हाँ, ब्लैक गर्ल्स, जिसकी जो डिमांड है, जिस टाइम पे जो डिमांड चल रही है, वो सप्लाई करते हैं। my God, और इनके बिजनेस में ऐश्वर्या राय बिल्कुल इनके साथ है, हाँ, पार्टनर है। terrible. So I think that's a beautiful session with you, Kajal. We are reaching our closing time. So thank you so much, Kajal. And this is we have not stopped anywhere. There's much more to speak about. So I'll call you for another session whenever you're free. Sure, Meena ji, Thank you. it is indeed a pleasure for me to be in your platform. And yeah, I'm very thankful, and it is really a healthy discussion, and I hope कि आपकी जो फैन फॉलोइंग है, उन्हें भी अच्छा लगे हमारा आज का ये प्रोग्राम जो है। Absolutely. Yeah. या Thank you एंड so much. थैंक यू सो मच। Yeah. जय हिंद, Good वंदे night. मातरम। Jai Hind. या Good night.